درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو بدا، اپنے پیارے نبی پر بھیجو بدا، اس نبی پر روباروں سلام، اس نبی پر روباروں سلام، پہنچ ہر ہزاروں سلام، پہنچ ہر پل میں 100 ہزاروں سلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ۔ جب سے پیدا ہوئے رسول خدا لا الہ، مرض معصیت کے بیماروں، مرض معصیت کے بیماروں، لو دوا لا الہ الا اللہ، لو دوا لا الہ۔ ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے آپ میں سچے ہو۔ قرآن نے کافروں کو للکارا، یہودیوں کو للکار کے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تو عام انسان کا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے کافروں کو للکارا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اپنے آپ میں سچے ہو، تم اپنے باپ میں سچے ہو تو اس کے مثل ایک آیت بھی بنا کے دکھاؤ۔ امام بریلوی کی سرزمین سے چیخ کے اور آج کے منافقوں کو للکار کے کہتا ہے کہ کوئی تیرے نام پہ جا پھرا، نہ بس ایک جا دو جہاں پھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھگا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عشق میں ڈوب کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا کہ اگر اس کے مثل تم اگر لا سکو تو ایک آیت ہی لا کے دکھاؤ، ایک آیت کا کوئی ٹکڑا ہی اس کے برابر میں تم لا سکو، کوئی نہیں لا سکا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہوں کیا کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تیرے سامنے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں ہے دبے رچے اے قرآن نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمالہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک نعت مصطفیٰ کلام اعلیٰ حضرت بات کرنے کے لیے عزیزم غلام مصطفیٰ شمسی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ عشق نبی میں جھوم کے نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کے نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل باغ مدینہ تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پورا مجمع واضح بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔
सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत का रुतीना शर्म ले जात मैं इरशाद होता वो कमाले हुस्ने हुजूर गए, वो कमाले हुस्ने हुजूर गए कि गुहमाने नक्श जागा नगी, वो कमाले हुस्ने हुजूर गए कि गुहमाने नक्श जागा नगी, यगी फूल खार से दूर गए, यगी शम्मा गए नगी, यगी फूल खार से दूर गए। और ये भी शेर ले जात मैं इरशाद मैं निसार तेरे कलामों पर, मैं निसार तेरे कलामों पर, मिलियों तो किसे को ज़बान, मैं निसार तेरे कलामों पर, मैं निसार तेरे कलामों पर गए। सुभानअल्लाह बखुदा खुदा कहयगी तर, बखुदा खुदा कहयगी तर, नहीं और को इमा फरमा कर, बखुदा खुदा कहयगी तर, नहीं और को तो मांगा नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर गए। और प्यारा शेर ले जाता मैं इरशाद होता तेरे आगे यूं है तबे लचे
اگلے تو الرضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کرو مت گے اگلے تو الرضا کرو مت گے اگلے تو الرضا پڑھ اس بلا میں میری بلا مہکتا ہوں اپنے قہری میں کہا مہکتا ہوں اپنے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، خدا کا ذکر صبح و شام کرتا ہے. اور اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے فقیر قادری آپ سب کو سلام کرتا ہے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ چلیے الحمدللہ بیدار ہیں آپ لوگ. ویسے مولانا عظیم اللہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بیدار نہ ہو. حضرات ایک مرتبہ پورا مجمع محبت و الفت کے ساتھ کسی کو دکھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ جو 9 روزہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اس حسین پاک کو راضی کرنے اجازت ہے. پڑھتا ہوں کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، کسی اور کا نہیں. سنیے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. یہ زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے. اور جن کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. جن کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. حضرات 9 روزہ پروگرام کا آج ہم اور آپ تیسرے دن الحمدللہ سفر کر رہے ہیں. میں بتاؤں کہ آج ویسے کل سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے، امید ہے ہمیں. یہ حضرات ہم سے قبل آپ تمام صابرین نے اللہ کے مقدس کلام کا آغاز سماعت کیا. اس سے قبل وہ بھی چند شعر کے لیے اور منقبت کا شعر سننے کے لیے سنیں گے نا. امید ہے کہ منقبت کا شعر سنیں گے تو آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جن کی یاد میں بیٹھے ہیں اس یاد کو بھی اور ہم سب کو بھی یہ امید ہوتی جا رہی ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ تعداد یہیں تک رہے گا. لیکن کل علامہ خلیل اللہ قادری چترویدی صاحب قبلہ نے اس بات کو کہا تھا کہ تعداد کم ہو تب بھی بول لیتے ہیں اور تعداد کثیر ہو تب بھی بول لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں 22,000 کا لشکر جرار نہیں چاہیے بلکہ حسینی 72 جانثار چاہیے. انہی میں سے ہم لوگ آج علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. اور حسین نے اجازت نہیں دیا ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. محترم سامعین کرام، منبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुबीन। झूम झूम कर दुरूद पाक की हदिया निछावर करें, पढ़े आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बहुत ही काबिल मुबारकबाद है कि जब जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है कि जिक्र इमाम हुसैन, जो मुहर्रमुल हराम के महीने में खुराफात कुछ लोग करते हैं, उनसे बचा करके ये जिक्र इमाम हुसैन किया जाए। किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि ये उदास राहे मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, ये उदास राहे मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई। या रसूल अल्लाह मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। मैं हूं सिर्फ एक मुसाफिर, तू चिराग राहे मंजिल। मैं हूं सिर्फ एक मुसाफिर, तू चिराग राहे मंजिल। मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई। मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई। और वह खुदाए बंदा परवर मेरा जुर्म बख्श देगा। वह खुदाए बंदा परवर मेरा जुर्म बख्श देगा। सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। सरे हश्र जब मैं दूंगा हुजूर का ये अदना सा मुजज़ा है। और बख्शी है तुझको असमत मेरे नबी ने अजमत। बख्शी है तुझको असमत मेरे नबी ने असमत। वरना कहा मुसलमान पत्थर को चूमता है। वरना कहा मुसलमान पत्थर को चूमता है। और इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। क्या बात है। हर दौर का मौर्रिख देता है ये गवाही। हर दौर का मौर्रिख देता है ये गवाही। ऐसी मेरे नबी का हर दौर में चला। अव्वल खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर, दोयम खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब। तो वाकयात आप लोगों ने समाअत कर लिया कि उन लोगों ने खिलाफत कैसे किया, अपनी जिंदगी कैसे गुजारा, इस दुनिया के एतबार से जिंदगी गुजारे, या अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी गुजारे। हजरत ग्रामी आज का मौजू है हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली और हजरत फातिमा ज़हरा। आओ हजरत ग्रामी हजरत अबू बकर सिद्दीक की हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत के बाद उनकी खिलाफत में जितने भी फितने दबे हुए थे, हजरत उस्मान गनी के जमाने में उतने फितने उभरने लगे। 6 साल तक तो हजरत ग्रामी बताने का मकसद ये है कि जब हजरत उस्मान गनी 12 साल तक खिलाफत कीजिए, लेकिन 12 साल में 6 साल जो उनकी खिलाफत की जिंदगी गुजरी बहुत ही बेहतर तरीके से गुजरा हजरत ग्रामी। लेकिन 6 साल के बाद उसमें कुछ कलफिसार होने लगा, उसमें कुछ परेशानियां आने लगी। हजरत ग्रामी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस परेशानियों का सामना हजरत मौला अली ने किया, हजरत ग्रामी तारीख के हवाले से बताना चाहते हैं। हजरत ग्रामी मिस्र का जो गवर्नर था अब्दुल्लाह इब्ने सबा था। इन तीनों लोगों ने इस फितने को ऐसा बढ़ावा दिया, इस तरह से कलफिसार मचाया। उन लोगों का दिली मकसद ये था कि हजरत उस्मान गनी को माजूल कर दिया जाए। लेकिन हजरत ग्रामी आपको हिसाब से बताना चाहते हैं कि जो मिस्र का गवर्नर था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सुर्रा, हजरत ग्रामी बड़ी ही मुतकब्बिर था, बड़ी ही शरीर आदमी था, बहुत ही बदमाशी का एक
का आदमी था। हजरात ग्रामी तारीख के हवाले से बताना चाहते हैं कि वहां पर लोगों को बेगुनाह जब कत्ल करने लगा, मैंने तारीख पढ़ा कि तारीख है बेबस हजरात ग्रामी मिस्र की धरती पर बेगुनाह लोगों को उसने कत्ल किया। कितने लोगों को कत्ल किया? लगभग 70 लोगों को उसने भी उस अशरे मुबश्शरा की जमाअत के सामने मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मेरे इंतकाल के बाद यानी मेरी दुनिया से रिहलत कर जाने के बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी और उसके बाद से ये इमारत बन जाएगी। आप गौर करें क्या मतलब, 30 साल तक खिलाफत रहेगी, 30 साल के बाद ये जगह इमारत बन जाएगी। और इमारत से आप क्या मुराद लेते हैं? जैसे राजा का बेटा राजा होता है उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे खिलाफत की धरती को चुना गया तो उसमें चुनने में कौन लोग थे? अशरे मुबश्शरा में जो 6 लोग अफजल थे, उन 6 लोगों के जिम्मे था कि हजरत उमर के बाद अब खलीफा किसको बनाया जाए। हजरत ग्रामी तो इन 6 लोगों ने चुना, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे थे। हजरत मौला अली को अलग बुला करके पूछते हैं कि अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत के बाद आपको खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया जाए तो आप क्या कहते हैं? या हजरत उस्मान गनी के बारे में आपका क्या इरादा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी भी अगर खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं हमें मंजूर है, हमें काबिल कबूल है, हमें कोई इनकार नहीं है। अब इस बात को राय जानने के बाद अब हजरत अब्दुर्रहमान और ये अब्दुल्ला इब्ने सबा ये दोनों कल फिसार मचाने लगे। हजरत उस्मान गनी का 6 साल का जो जमाना गुजरा, उसके बाद से ये लोग जो दबी हुई और जो उस वक्त फितने थे उसको उभारने लगे। कहने लगे क्या कि हजरत उस्मान गनी अब अपने रिश्तेदारों को ओहदे पर बैठाने लगे, कहीं गवर्नर की जगह उनको देने लगे, कहीं कोतवाल बनाकर भेज रहे हैं और बैतुल माल का माल पूरा लुटाते हैं। हजरत ग्रामी जबकि हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि नहीं नहीं, कसम खुदा की हमें रब्बे कायनात ने जो दौलत दिया है, हमें जो रब्बे कायनात ने माल दिया है, उस माल से हम अपने ओहदे को बैठाते हैं या लोगों को मदद करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए हम अपने बैतुल माल से नहीं देते हैं, बल्कि जो हमारा अपना माल है हम उसमें से देते हैं। अब जरा गौर करो मुसलमानों, उनके करीब में एक रहता था जिसका नाम था मरवान। गौर से सुनिएगा एक जुमले को ताकि बात समझ में आएगी। तो उसके करीब में, उनके करीब में जो मरवान रहता था तो उसने उससे सेटिंग किया। किसने? अब्दुल्ला इब्ने सुर्रा ने। सेटिंग किससे किया? मरवान से। कहा कि आप हैं तो आप तो हजरत अब्दुर्रहमान के हेड राइटिंग में आप कलम चलाना भी जानते हैं, उनकी तहरीर में आप लिखते भी हैं, यही एक मौका है कि आप उनके तरफ से एक खत लिखिए जो उनकी राइटिंग में हो। हजरत ग्रामी ने क्या किया? मरवान ने की खत निकाला, जो हुकूमत की कागज है उस कागज को निकालते हैं और हजरत मौला अली के पास जो लोग शिकायत आकर किए थे उन 70 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था। किसने? अब्दुल्ला इब्ने सुर्रा ने। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जब इन 70 लोगों को कत्ल कर दिया तो लगभग मिस्र से 700 सहाबाए कराम हजरत उस्मान गनी के बारगाह में आए और ये अरीजा पेश किए कि हजरत उस्मान गनी जो मिस्र का गवर्नर है, जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने सुर्रा है, आप उसे जल्द माजूल करें। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि वहां पे गवर्नर किसको बनाया जाए? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बेहतर है कि वहां पे मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए। अब आप गौर करें कि मोहम्मद इब्ने अबू बकर हैं कौन? हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अव्वल खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर के छोटे बेटे हैं। हजरत ग्रामी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया था तो उनकी बेवा औरत से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला निकाह कर लिए थे और उनके बाद अपने माँ के साथ साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के घर ही गए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के साथ परवरिश पाए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने तरबियत दिया। अब हजरत उस्मान गनी उनके नाम से रुक्का लिखते हैं, खत लिखते हैं। किसके नाम से? अब्दुल्ला
अब्दुल्ला इब्न सुर्रा के नाम खत लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न सुर्रा हम तुझे माजूल करते हैं, और उस जगह पे गवर्नर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को बना करके भेजते हैं। ये खत में लिखा जाता है, एक हजरत ग्रामी जब ये खत लिख करके रवाना करते हैं, उसके फौरन बाद ही हजरत ग्रामी मरवान ने भी हुकूमत के कागज लेकर के, हुकूमत के लेटर पैड लेकर के, हुकूमत की रोशनाई लेकर के हजरत उस्मान गनी की हैंडराइटिंग में लिखा। हजरत ग्रामी उस पे हजरत उस्मान गनी के नाम की मुहर है। हजरत ग्रामी लिख करके भेजता है कि हजरत अब्दुल रहमान इब्न सुर्रा वहाँ पे अबू बकर को, मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बना करके भेजा जा रहा है। ऐसे अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद बिन अबू बकर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप कत्ल का इंतजाम पहले रखिए। जैसे पहुँचते हैं तो आप उसे कत्ल कर दीजिए, और कत्ल करने के बाद आप वहाँ पे गवर्नर बने रहिए, और एक गुलाम से भेज देता हूँ खत को। हजरत ग्रामी गुलाम किसका है? हजरत उस्मान गनी का गुलाम है। हजरत ग्रामी ऊँटनी किसकी है? हजरत उस्मान गनी की ऊँटनी है। हजरत ग्रामी उस ऊँटनी पे सवार होकर के जा रहा है। अभी मदीना तैयबा से हजरत ग्रामी कुछ ही मील दूरी पर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़े थे। कितने ही देर में हजरत ग्रामी हबशी गुलाम ऊँट पे सवार होकर के बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। हजरत ग्रामी को थोड़ा सा डाउटफुल लगा। हजरत अबू बकर को, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को शक लगा कि आखिर इसके पीछे कोई सिपा सालार नहीं है, आखिर इसके पीछे कोई दौड़ नहीं रहा है, इसे कोई पकड़ने के लिए जा नहीं रहा है, इसके पीछे कोई सिपा सालार लगे नहीं है, इसके पीछे कोई फौज नहीं है, तो आखिर ये तेजी के साथ किस लिए निकलता जा रहा है, जरा इसको तलाशी ली जाए। उन लोगों ने पकड़ कर उसके तलाशी लिया। पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि हम मिस्र जा रहे हैं। हम मोहम्मद बिन अबू बकर पूछते हैं कि किस लिए जा रहे हो? हजरत ग्रामी बताने से इनकार किया। हजरत ग्रामी उसको पकड़ने के बाद उसके मस्कीजे की तलाशी ली गई। क्या थी मस्कीजे में? जो पानी लेकर के, पहले जो चमड़ा का थैला होता था, उस चमड़ा जो खुश्क था उसमें पानी नहीं था, उसमें जो मरवान ने खत लिख करके भेजा था, अब ये लेकर के हबशी गुलाम जो है मिस्र की तरफ रवाना हुआ था। हजरत ग्रामी इधर से गवर्नर मिस्र बना करके मोहम्मद बिन अबू बकर को हजरत सिद्दीक अकबर भेज रहे हैं, और इधर से चुपके चुपके हुकूमत की लेटर पैड पे लिख करके मरवान ने इसके साथ भेज दिया। जब वो खत निकाला गया, मोहम्मद बिन अबू बकर के जब देखते उस खत को तो उसमें पढ़ते क्या है? उसमें लिखा गया है कि हम मोहम्मद बिन अबू बकर को बना करके गवर्नर भेज रहे हैं, उनके साथ में कुछ लोग जा रहे हैं साथ ही। जैसे ही मिस्र पहुंचते हैं तो मिस्र पहुंचने के साथ साथ उन्हें कत्ल कर देना, कत्ल का इंतजाम पहले रखना। अब जरा गौर कर मुसलमानों, इस खत को पढ़ने के बाद अब मिस्र की तरफ जाने के बाद बजाय हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अब मिस्र की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि फिर वापस लौट करके मदीना तैयबा की तरफ आते हैं। आने के बाद हजरत मौला अली को ये खत दिखाते हैं। हजरत मौला अली ने वहाँ पे जितने बुजुर्ग सहाबी थे सबको बुलाते हैं। जो अशरे मुबशरा की जमात है, उन जमातों में से बुजुर्ग सहाबी है, उन बुजुर्ग सहाबी को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद ये मजमून पढ़ करके सुनाया जाता है। हजरत ग्रामी जैसे ही मजमून को पढ़ करके सुनाया जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर में मजबूरी के तहत बनाकर भेज रहा हूँ। जैसे ये मिस्र पहुंचते हैं तो कत्ल का इंतजाम पहले रखना। हजरत ग्रामी हजरत मौला अली है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग फैसला करते हैं। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है अपने शायराने अंदाज में कि सूरज पलट के आया, शक्चाद हो गया है, मेरे हुजूर का ये अदना सा मौजज़ा है, और बख्शी है किशोर रसूल, मेरे नबी ने अज़मत और माँ का मुसलमान पत्थर को चूमता है। हजरत ग्रामी मोहम्मद बिन अबू बकर को लेकर के हजरत उस्मान गनी को पेश किया जाता है। अब सवाल कौन कर रहा है? उस खत के मजमून को पढ़ कौन रहा है? हजरत मौला अली खत के मजमून को अपने निगाहों के सामने रखते हैं, और सामने रखने के बाद कहते हैं, हजरत अली ने पूछा हजरत उस्मान गनी से, क्या ये ऊँटनी आपकी है? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ ये ऊँटनी मेरी है। फिर उसके बाद से हजरत उस्मान गनी से मौला अली ने सवाल किया कि क्या ये गुलाम आपका है? हजरत उस्मान गनी ने कहा कि हाँ गुलाम मेरा है, गुलाम भी मेरा है, ऊँटनी भी मेरी है, कागज भी मेरा है, और ये मुहर भी मेरी है। हजरत ग्रामी इतनी बातों को जो तस्लीम कर लेते हैं, और मोहम्मद बिन अबू बकर के जितने दोस्त हैं वो भी बैठे हैं। फिर हजरत अली ने चौथा सवाल किया
कि हजरत उस्मान गनी ये बताइए कि जो तहरीर है, जो ये मजमून है, इसके बारे में क्या कहना है। हजरत उस्मान गनी कसम खाते हैं और कसम खा करके कहते हैं कि कसम खुदा की ये तहरीर न मैंने लिखी है न मैंने किसी से लिखवाया है। हजरत गरामी तो उसमें कुछ लोग इनकार कर गए। क्या इनकार कर गए कि लेटर पैड इनके है, हुकूमत के कागज है, हुकूमत की रोशनाई है, और उसके बाद से मोहर हजरत अली के नाम की है, ऊँटनी इनकी है, गुलाम इनका है, तो फिर ये मजमून किसी दूसरे का कैसे हो सकता है। लेकिन जब कसम खा करके कहे तो सहाबा ने तो मान लिया। सहाबा ने कहा कि हजरत उस्मान गनी सहाबी रसूल ये झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे उस्मान गनी ने कागज को मान लिया कि ये कागज मेरा है, हजरत उस्मान गनी ने मोहर को मान लिया कि मोहर मेरा है, हजरत उस्मान गनी ने भी मान लिया कि ऊँटनी मेरी है, हजरत उस्मान गनी ने गुलाम को भी मान लिया कि गुलाम मेरा है। तो अगर ये मजमून लिखे होते तो एक मजमून मान लेने में क्या हर्ज था, मगर हजरत उस्मान गनी ने उस मजमून को लिखा ही नहीं था, तो कैसे कर सकते हैं। हजरत करामी उस पर अब डाउटफुल लगने लगा। मोहम्मद बिन अबू बकर के जितने दोस्त हैं अब ये कहने लगे कि सब इनका है, तो मजमून किसी दूसरे के कैसे हो सकता है। उस्मान गनी इस पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बोताल लगाया गया। अब इस बात को सुनिए, इसके बाद तारीख पता चलेगा कि हजरत उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। बस हम आपको बताना ये चाहते हैं कि हजरत उस्मान गनी, हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी कैसे गुजरी। क्या किसी दुनियादार को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारे, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए, या जन्नत के लालच में उन लोगों ने जिंदगी गुजारा, इस बात को हम क्लियर करके जाएंगे। हजरत ग्रामी हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जब ये बात हो गई तो मोहम्मद बिन अबू बकर ने बसरा में खून किया, और उसके अलावा हफ्सा में खून किया, उसके अलावा रूम में खून, उस वक्त खून का जमाना नहीं था, मगर खतूत के जरिए उसने कांटेक्ट किया। अब बलवाई आ रहे हैं मिस्र से चल करके, मदीने में बलवाई आ रहे हैं, रोम से चल करके यहाँ पे आ रहे हैं, बसरा से चल करके बलवाई आ रहे हैं। अब बलवाइयों का क्या कहना था। बलवाइयों का कहना यह था कि मरवान को आप हमारे हवाले करें या नहीं तो हम आपको कत्ल करेंगे। दो मुतालबे थे, या तो मरवान को हमारे हवाले करें या तो हम आपको कत्ल करेंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने मरवान को हवाले क्यों नहीं किया। हजरत उस्मान गनी अगर मरवान को हवाले कर दिए होते तो हजरत उस्मान गनी बच गए होते। लेकिन जहां पे मसीहत इलाही है, जैसे मौत लिखी रहती है वैसी होती है। हजरत गरामी अल्लाह की रजा पे राजी है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी शक की बुनियाद पर मरवान को बाहर नहीं लाए, बलवाइयों के हवाले नहीं किए। कि आज हम एक जान गंवा देते हैं तो अल्लाह तबारक ताला जरूर पूछेगा, इसका हम जवाब मैदान महशर में क्या देंगे। हजरत ग्रामी तो मरवान को हजरत उस्मान गनी ने शक की बुनियाद पर नहीं पेश किया कि पता नहीं ये लिखा है या नहीं लिखा है। लोगों ने मरवान से पूछा कि ये बताओ ये खत हजरत उमर में हजरत उस्मान गनी की राइटिंग में आपने लिखा। तो मरवान ने कहा हमें क्या पड़ी, हमको क्या जरूरत है कि हम लिखेंगे, अपनी बात बना करके निकल गया। हजरत ग्रामी जब बलवाई आए तो मदीने तैयबा में लगभग 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर का घेराव किए रहे, और उस घर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को जब ये पता चल गया कि बलवाई चारों तरफ से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी की जान के खतरा है। हजरत उस्मान गनी के जान की हिफाजत के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे हजरत इमाम हसन, अपने बेटे हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बेटों को, और भी कुछ सहाबा अपने अपने बेटों को हजरत उस्मान गनी के घर के सामने लगा दिए बॉडीगार्ड के तौर पर कि इधर से बलवाई जाने ना पाए, वरना हजरत उस्मान गनी का कत्ल हो सकता है। बलवाई किसी को होते नहीं है, आप उनकी हिफाजत करें। हजरत गरामी जब हिफाजत के लिए लगा करके हजरत अली को बहुत सदमा था और ये डर था कि हो सकता है उस्मान गनी को बलवाई कत्ल कर देंगे। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को लगा देते कि आपको यहाँ पे बलवाइयों को आने की जरूरत नहीं है और आप उसे रोक दीजिएगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज शिया लोगों ने अपने किताबों में लिखा, देखिए क्लियर हम बता रहे हैं। अब अल्लाह जाने जो भी गलत सही हो अल्लाह तबारक ताला माफ फरमाए, लेकिन जो तारीख मैंने पढ़ी उसी तारीख को बता रहे हैं।
हजरत उस्मान गनी के पहरा में जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अपने बेटों को लगाए थे, तो सिया लोग और उसके कुछ और फिरके जिन लोगों ने अपने अपने किताबों में लिखा है कि रिश्ते में हजरत उस्मान गनी हजरत इमाम हुसैन के खालू लगते हैं, और इन लोगों ने मिलकर के उन्हें कत्ल करा दिया, जबकि ये मोतबर तारीख नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हजरत गरामी जिसकी हिफाजत के लिए मौला अली लगाए और उनके खिलाफ उनके बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन कर दे, नहीं हो सकता। किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है, जो सबकी सजदों की लाज रख ले, वह एक सजदा हुसैन का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला। माशाअल्लाह सुभान। रात ग्रामी तो जब ये बात पता चली तो पीछे से बलवाई लोगों ने आपस में राय किया कि हजरत उस्मान गनी को किसी भी हाल में कत्ल कर देना है, नहीं तो बलवा मरवान को हमारे हवाले करे। मुतालबा यही दो था। तो जब देखे कि सामने में हजरत अली के बेटे हैं, तो हजरत अली के बेटों से कोई टकराने की किसी की हिम्मत है? क्या बात है। जो मैदान करबला में 22 लाख के लश्कर जर्रार को पानी पिला कर रख दीजिए, गाजर और खीरा की तरह काट काट करके अलग थलग करके रख दीजिए, उन बेटों से कोई टकरा सकता है? हजरत गरामी जब उस्मान गनी की शहादत की खबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंची, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला आए और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को दो तमाचा लगाए थे। हजरत गरामी हजरत अली ने अपने बेटों को पूरी जिंदगी में कभी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को कभी थप्पड़ नहीं लगाया था, लेकिन इन लोगों ऐसा मंजर आ गया, ऐसा हालात आ गए, हजरत मौला अली ने अपने उन दोनों बेटों पे हाथ उठाया। हजरत गरामी किसी आशिक ने नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा जब हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को गोद में लेकर के कभी चूमा करते थे और कभी सूंघा करते थे, तो सहाबा देख करके मुस्कुराते थे और मेरे मुस्तफा से पूछते थे कि हजरत मौला कहते या रसूल अल्लाह, आप कभी हजरत इमाम हसन और हुसैन को चूमा करते हैं और कभी सूंघा करते हैं? तो मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया कि सहाबा क्या ये माजरत तुम्हें समझ में नहीं आता? तो हजरत गरामी सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप कभी चूमा करते हैं और कभी सूंघा करते हैं, तो ये माजरा समझ में नहीं आता। मदीने के ताजदार नहीं पे परवरदिगार आमद मुख्तार कायनात के रिफॉर्मर जवाब देते हैं, अरे ये दोनों जन्नती फूल है, इसीलिए इन्हें सूंघा करते हैं, और ये दोनों नमाज़े रसूल है, इसीलिए इन्हें चूमा करते हैं। ऐ लोगों जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा के नजदीक हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम क्या है, लेकिन ऐसा वक्त आया कि हजरत मौला अली ने तमाचा मारा है। ऐ लोगों पूछते हैं कि क्या हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया गया? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि हमारे इस दरवाजे के सामने से कोई परवाही नहीं गया। अब हजरत उस्मान गनी के बारे में हजरत मौला अली ने पूछा कि ये बताओ कि बलवाई गए किधर से? तो तारीख ये बता रही है, एक तारीख पढ़े आप पता चलेगा कि हजरत उस्मान गनी के घर के पीछे से दूसरे घर से हजरत उस्मान गनी के घर में ये दोनों बलवाई आए थे जो नकाबपोश थे। बिल्कुल तारीख बता रहा हूं, दोनों नकाबपोश थे, और साथ में मोहम्मद बिन अबू बकर थे, जिनको गवर्नर के नाम लिख करके भेजा गया था, वो साथ में थे। उनके हाथ में तलवार है। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के घर में पहुंचते हैं और हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो कौन सा सफा था मुसलमानों? वो कुरान की कौन सी आयत की तिलावत कर रहे थे? कुरान के पहले पारा में जो फसयत फी कहो मौला वह हुआ समीउल अलीम सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगत व नहनु लहु मुहसिनून। हजरत गरामी ये आयत करीमा तिलावत कर रहे थे और उनकी बीवी हजरत नाइला उस वक्त मौजूद थी। हजरत गरामी जब ये दोनों पहुंचे हैं, हजरत उस्मान गनी के दाढ़ी पकड़ा मोहम्मद बिन अबू बकर ने और तलवार चलाना सोचा कि तलवार चला दो। इतने देर में हजरत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया? कहा कि मोहम्मद बिन अबू बकर जो मेरे साथ तुम रवैया कर रहे हो, क्या अगर तुम्हारे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक होते तो क्या इसे पसंद करते? मोहम्मद बिन अबू बकर कहते कि मुझे शर्म आ गई। वो तलवार छोड़ करके घर से बाहर निकल गए, लेकिन जो नकाबपोश घर के अंदर गए थे उसमें एक परवाई का नाम हिमार था। उस हिमार ने चेहरे पर नकाब डाल करके लगातार हजरत उस्मान गनी के सीने में खंजर डाल रहा है, यहाँ तक कि उनकी मौत हो जाती है और उनकी
और एक जंगे तबूक है, जिस जंगे तबूक में हजरत मौला अली नहीं पहुंचे थे। हजरत ग्रामी इसलिए कि मौला अली जंगे तबूक में नहीं पहुंचे, और हजरत ग्रामी जंगे बदर में हजरत उस्मान गनी किस लिए नहीं पहुंचे, इसलिए कि उस वक्त हजरत उस्मान गनी की निकाह में हमारे नबी की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और उनकी तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत अलील थी। जब वो जंग हुई तो मेरे मुस्तफा ने हजरत उस्मान गनी को रोक दिया और कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, रुकैया की तीमारदारी में रहे। हजरत ग्रामी जब इनको खबर मिली वो रुक गए, और 2 दिन के बाद या जब भी खबर मिली कि जंग बदर में मेरे मुस्तफा फातेह होकर के आए हैं, वहां पे फतह हासिल करके आए हैं, हजरत ग्रामी उसी तारीख में जिस दिन जंग बदर जीती गई, जिस दिन जंग बदर में फतह हासिल होगा, उसी दिन हजरत रुकैया का इंतकाल होता है। हजरत ग्रामी तो हजरत उस्मान गनी हजरत ग्रामी जन्नतुल बकी में ले जाकर के उनकी तदफीन कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जंग बदर में यानी बदरियों में हजरत उस्मान गनी को शामिल किया था हजरत ग्रामी। लेकिन मेरे मुस्तफा के नजदीक हजरत उस्मान गनी का मकाम क्या है, इस मकाम को समझो। मेरे मुस्तफा एक जंग में जा रहे हैं, जबकि जंग तबूक के लिए मेरे मुस्तफा ने चंदा किया, तो जैसे ही चंदा फरमाया उसमें जो लोग सहाबी थे अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक लोगों ने उसमें चंदा दिया। जब हजरत उस्मान गनी से चंदा के लिए कहा गया तो हजरत उस्मान गनी ने मुस्तफा के ऊपर माल जान दान धाम दौलत सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। इस तरह से मेरे नबी के इश्क में फिदा थे। हजरत ग्रामी तो हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे तरफ से 100 ऊंट पूरे साजो सामान के लिए जंग तबूक के लिए मैं पेश करता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फिर तरगीब दिलाई, हजरत उस्मान गनी ने फिर 100 ऊंट का ऐलान किया, फिर मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया, फिर तीसरे मरतबा भी 100 ऊंट की ऐलान करने के बाद कहते हैं मैं 100 ऊंट साजो सामान के साथ पेश करता हूँ। इतने बाद फिर मेरे मुस्तफा ने जब तबूक के लिए चंदा किया और हजरत उस्मान गनी से कहा, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी ने तो हद ही कर दी था। कहते या रसूल अल्लाह, जंग तबूक के लिए उस्मान गनी 1000 ऊंटों के साथ साजो सामान के साथ पेश करते हैं, और जंग तबूक को लड़ा जाए और जंग तबूक पे फतह हासिल किया जाए। लेकिन ऐ लोगों, जब मेरे मुस्तफा हज का उम्रा का इरादा बनाते हैं, हजरत उस्मान गनी को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद कहते हैं क्या कि मक्का के जितने काफिर हैं, काफिरों का कहना है कि मक्कातुल मुकर्रमा में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम दाखिल नहीं होने देंगे। तो मेरे मुस्तफा ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया और कहा कि आप जाइए मक्का, और मक्का के काफिरों से कहिए कि मेरे मुस्तफा सिर्फ यहाँ पे उम्रा के लिए आ रहे हैं और कोई काम नहीं करेंगे। जब हजरत ग्रामी हजरत उस्मान गनी को क्यों भेजे, इसलिए कि उस वक्त भी जब हजरत उस्मान गनी ईमान ला चुके थे नबी पर और हर तरह से जान माल हर चीज की कुर्बानी देने लगे, तो हजरत उस्मान गनी को भेजा इसलिए कि हजरत उस्मान गनी उन काफिरों के नजदीक अभी भी बहुत मुअज्जत थे, अभी भी बहुत उनकी इज्जत और अजमत होती थी। हजरत ग्रामी जब मक्का गए, मक्का जाने के बाद जब वहां के काफिरों ने कहा कि उस्मान गनी आप कहाँ आए हैं, हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पर आ रहे हैं, यहाँ पे कोई और काम नहीं है, सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां के जितने काफिर थे आज कबूला हो गए, कहे कि हम मोहम्मद की सरहद के अंदर आने नहीं देंगे, आप उम्रा कर लीजिए। लेकिन ऐ लोगों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने दुनिया के लोगों को हजरत उस्मान गनी के दुनिया के लोगों को मिजाज क्या दिया, दुनिया के लोगों को मुस्तफा पर कटने का मिजाज क्या दिया, दौलत लुटाने का मिजाज क्या दिया, धन दौलत लुटाने का मिजाज क्या दिया। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जब मेरे मुस्तफा उम्रा नहीं करेंगे, जब मेरे हबीब उम्रा नहीं करेंगे, तो उस्मान को उम्रा करने की क्या जरूरत है। लोग ये उदासरा हो नजर, ये मेरी शिकस्त का कोई या रसूल अल्लाह, अब तक थक के पैर जाता तेरी कामयाब आई या अल्लाह। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पे जाने के लिए उस्मान गनी को भेजते हैं। अब वहां पे मामला क्या होता है, हजरत ग्रामी तो हजरत उस्मान गनी उधर से जब लौट कर आते हैं, एक तारीख और यहाँ पे है कि जब हजरत उस्मान गनी ने दुनिया में दौलत लुटा करके मेरे मुस्तफा पर दुनिया वालों को दिखा दिया कि माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये हमसे नहीं होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐ लोगों, हजरत उस्मान गनी ने दुनिया वालों को और नबी के
तरीका बताया कि नबी के नाम पर अगर लुटाने की जरूरत पड़ जाए तो तुम अपनी दौलत की परवाह न करना, इसलिए कि दौलत जब अल्लाह की राह में कोई खर्च करता है तो रब्बे कायनात उसे रायगा नहीं जाने देता है, बल्कि अपने बारगाह में कबूल करता है और उसी के सदक़े तुफैल में मैदान महशर में उसकी बख्शिश फरमाएगा। हज़रत करानी जब ये गवर्नर नामा की बात रही तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर ने हजरत उस्मान गनी को जब कत्ल करा दिया, हजरत मौला अली ने जब पूछा कि मोहम्मद बिन अबू बकर क्या तुमने हजरत उस्मान गनी को कत्ल किया, तो कसम खा करके मोहम्मद बिन अबू बकर कहने लगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं तो तलवार लेकर के गया था, हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ा और सोचा कि मैं तलवार या खंजर उनको मार दूं। इतने ही देर में हजरत उस्मान गनी ने कहा कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जो तुम हरकत कर रहे हो, क्या ये हरकत हजरत अबू बकर सिद्दीक होते तो क्या ये पसंद करते? मुझे डर महसूस हुआ, मेरे खौफ महसूस हुआ कि मैं मैदान महशर में अपने अब्बा जान को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, वो अब्बा जान को जिसने सिद्दीक अकबर ने मेरे मुस्तफा के साथ में हजर में थे तो हजर में थे, हजरत करामी सफर में रहे, हर जगह सिद्दीक अकबर ने किस तरह से साथ दिया, वो डर गए और ये सारी बात बताने लगे। लेकिन उसमें कत्ल किसने किया था? जिसका नाम हिमार था, उसने कत्ल किया था। अब आखिरी तारीख सुने, उसके बाद से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू पर मैं गुफ्तगू करूंगा। हजरत ग्रामी हजरत अली ने अपनी जिंदगी में जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की तो उनके साथ में 1400 सहाबा थे, लेकिन बीच में एक जगह मकामे हुदैबिया है, उस मकामे हुदैबिया पे मेरे मुस्तफा ठहर गए। हजरत ग्रामी वहां पे पानी की किल्लत थी, एक कटोरे में मेरे मुस्तफा पानी प्याले में लेकर के वजू फरमा रहे थे और 1400 सहाबा साथ में है। हजरत ग्रामी किल्लत पानी की हो गई, प्यास लगी थी सहाबा को, सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह पानी का कहीं इंतजाम नहीं है, आपके जो प्याले में पानी है बस वही पानी नजर आ रहा है, उसके अलावा कहीं पानी नहीं है, और जितने सहाबा है प्यास की शिद्दत में है, या रसूल अल्लाह आप कुछ इंतजाम कर दीजिए। आज जो बदअकीलों ने कहा कि नबी के अख्तियार में कुछ भी नहीं है और जो अपने किताबों में लिखते हैं कि मुस्तफा को मक्के में रहते तो मदीने की खबर नहीं है, मदीने में रहते तो मक्के की खबर नहीं है, मुस्तफा के बारे में कहते हैं लेकिन उनके बारे में पूछना है तो बरेली के इमाम से पूछो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान हक्कानियत की पहचान, सुन्नियत की जान, बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इशारा फरमाते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, औला आलम का औला हमारा नबी, कौन देता है देने का वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सच्चा वाले में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने मेरी नबी की दावत की, वहां पे मेरे मुस्तफा ने मकामे हुदैबिया में जिस प्याले में पानी था देखे कि सहाबा प्यास की शिद्दत में है, अपने उंगलियों को उसमें डाल देते हैं, डालना था क्या वहां पे पानी उबलना शुरू हो गया, जिस तरह से मीना की वादी में हजरत इस्माइल के कदमों से पानी निकलने लगा तलवे मुबारक से, जिसके बारे में कुरान कह रहा है अशरत आईना कद अलीमा कुल्लू नासिब मशरबहुम, यानी उबलता हुआ चश्मा जारी हो गया। आज इस अंदाज में पानी उबल रहा है कि मेरे मुस्तफा के अंगुष्ठे मुबारक प्याले में है और पानी उससे उबल रहा है, सहाबा उससे पीते हैं, हर भाइयों से पानी निकल रहा है और सहाबा पीते हैं। आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां है फैस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां है फैस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। हजरत करामी तो इस तरह से प्यासे झूम करके आए हैं कि हर सहाबा पानी पी के मेरे मुस्तफा ने कहा कि अपने ऊँटों को पिला दो। हजरत करामी
बढ़ा दिया। बात को आखिरी सुनिए। हजरत उस्मान गनी ने अपने घर में दावत की और दावत करने के बाद 14 या 1500 साहबा हजरत उस्मान गनी के घर जा रहे हैं और पीछे पीछे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कदमे नास गिन रहे हैं कि मुस्तफा के कदम कितने पड़ते हैं मेरे काशाना तक, यानी काशाना उस्मान तक जाने में कितने कदम होते हैं। मेरे मुस्तफा ने उस्मान गनी से पूछा, उस्मान ये क्या कर रहे हो? हजरत उस्मान देखो किस तरह से जान के साथ मिला है कि अगर नबी पर मरने पीटने की जरूरत पड़े तो मेरे मुस्तफा हयात में रहे, हम उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे। ऐ लोगों गौर करो, इस तरह से मेरे मुस्तफा पर कुर्बान है। और जब इस तरह से माल जान के साथ मेरे मुस्तफा के नाम पर कुर्बान होता है तब जाकर के अल्लाह राजी होता है। तब कुरान में कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, यानी अल्लाह के रसूल को राजी कर लो और उसके बाद उसके बनाए हुए जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ। हजरत उस्मान से मेरे नबी मुसलमानों ये आजादी देखते हैं। मेरे मुस्तफा जब हजरत उस्मान गनी के घर पहुंचते हैं और उस्मान गनी के काशाना पर जितना कदम पड़ता है, हजरत उस्मान गनी ने उनके नाम पर एक एक कदम उनके कदम पर एक एक गुलाम आजाद करते हैं और उसमें हजरत मौला अली भी थे। अब यहाँ पे हजरत मौला अली की माल नहीं थे कि गुलाम को आजाद करे, साजो सामान के साथ ऊंट को उनके ऊपर नाम पर हजरत ग्रामी हजरत उस्मान गनी के हालात देख करके हजरत मौला अली हजरत खातून जन्नत से कहते हैं कि इस तरह की बात देखे मैं गमगीन हो गया कि क्या आज रब्बे कायनात मुझे भी दौलत से नवाजा होता, आज मेरे पास भी सरवत होते, आज मेरे पास भी माल होता, आज का शान अली तक जब मेरे मुस्तफा आते आज मैं भी उनके एक एक कदम पे मैं गुलाम को आजाद करता। लेकिन हजरत इकराम इतना सुनना था। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि अली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए मुस्तफा को दावत दे करके आइए। हजरत ग्रामी कहते कि इंतजाम कैसे होगा? हजरत खातून जन्नत ने कहा कि मेरे नबी मेरे मेहमान होंगे और उनके साथ जो आएंगे उनके मेहमान होंगे, हम अपने मेहमान के इंतजाम करेंगे, हम अपने अब्बा जान के लिए इंतजाम करेंगे और अपने साथियों के साथ मेरे मुस्तफा इंतजाम करेंगे। हजरत ग्रामी इस तरह से दावत होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं, कहते कि या रसूल अल्लाह मेरे घर भी आपकी दावत है, आपके साथ जितने लोग हैं आप मेरे घर भी तशरीफ लाए। हजरत ग्रामी दावत दे करके आते हैं। हजरत खातून जन्नत ने पूछा कि अली क्या आपने दावत दे दिया मुस्तफा को? हजरत अली कहते कि हाँ मैंने तो दावत दे करके आया और मेरे मुस्तफा दावत को कबूल भी कर लेंगे, कर लिए हैं और आने वाले हैं काशाना अली तक। हजरत ग्रामी आज काशाना अली तक जाते हैं। हजरत फातिमा का मकाम सुनो मुसलमानों, हजरत फातिमा ज़हरा ने हाडी को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसके बाद से मुसल्ले को बिठाती है और मुसल्ले को बिठाने के बाद बारगाह मौला में हाथ उठा करके दुआ करती है, कहती है कि मौला उस्मान के पास जितनी दौलत है उतनी दौलत तो मेरे पास नहीं है, उतनी शरबत तो मेरे पास नहीं है। हम अपने अब्बा जान के एक एक कदम पे मैं गुलाम आजाद करूं, लेकिन मौला मेरी दुआ को रोएगा न जाने देना, मौला मेरी दुआ को पैगाम न जाने देना, मौला तेरे महबूब के बेटी के घर तेरा महबूब आ रहा है, मौला इंतजाम कर देना। तारीख में बता रही है कि चूल्हे पे जो हाडी चढ़ी थी जब ये दुआ करके फारिग होती है तो देखती है कि हर तरह के खाने वहां पे इंतजाम है, दस्तरखान चुना जाता है और उसी दस्तरखान पे हजरत मौला अली के दस्तरखान पे हमारे नबी और उनके सहाबा मौजूद होते हैं। खाना तनाउल फरमाने से पहले खाना मेरे मुस्तफा ने देखा तो सहाबा से पूछा, कहते कि सहाबा ये बताओ तुम्हें मालूम है कि ये खाना कहाँ से आया है, ये खाना किसने लाया है? सहाबा कहते कि या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। आज का देवबंदी बदअकीदा कहता है कि नबी को कुछ भी इनमें गैब नहीं है, लेकिन सारे सहाबा है, सारे सहाबा को ये मालूम है कि मेरे मुस्तफा जानते हैं और मुस्तफा के बारे में कायनात जानता है और अपना महबूब जानता है। रात ग्रामी तो मेरे मुस्तफा ने कहा जो तुम दस्तरखान पे खाना तनाउल फरमा रहे हो ये खाना जन्नत से आया है। हजरत ग्रामी जन्नत से खाना आने के बाद जब मेरे मुस्तफा ने खाना तनाउल फरमा लिया, उनके साथ साहबा जो थे खाना तनाउल फरमा लिए, जब घर से आगे बढ़ते हैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं, इतने ही देर में हजरत खातून जन्नत ने फिर बारगाह ये मौला में दुआ किया। आजकल की औरतों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों सुनो, न तुम किसी वली की बेटी हो, न तुम किसी कुतुब की बेटी हो, न किसी अब्दाल की बेटी हो, न किसी नबी की बेटी हो, तुम नमाज से इतनी दूर हो, सिर्फ फातिहा में पढ़ी हो, चादर गागर अगर
हज़रात करामी हज़रत खातून जन्नत मसल्ला बिछाती है और फिर उसके बाद से दुआ करती है, कहती है कि मौला मेरे तो पास होती दौलत नहीं मैं गुलाम आजाद करूं, लेकिन ए मौला मेरे मुस्तफ़ा मेरे काशाने पर आए थे, यानी काशाने फातिमा पर, काशाने अली पर आए हैं। अब इसके बाद से मेरे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, तब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि मौला मेरे अब्बा जान के एक एक कदम के बदले में 1,000 मेरे मुस्तफ़ा के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, जिनके ऊपर हज़रात करामी जहन्नम हाजी, जिनके ऊपर जहन्नम लाजिम है, उसको मैं उसको बख्श दे। हज़रात करामी अभी कुछ ही कदम चले थे कि बुलबुल सिदरा तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद मुझसे सुनाते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप हज़रत काशाना फातिमा से चले हैं और फातिमा ज़हरा ने जब दुआ की है, अब वो दवा बाबे इजाबत में टकराती है और फातिमा ज़हरा ने दुआ क्या किया था कि मौला हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मेरे मुस्तफ़ा काशाना फातिमा पे आए थे कि एक एक कदम के बदले में 1,000 गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। हज़रत करामी हज़रत खातून जन्नत को अपने जान अपने ना अपने अब्बा जान के उम्मतियों की फिक्र लगी हुई है, लेकिन मेरी माँ बहन इन सारी चीजों से दूर है, वो फातिमा है। हज़रत करामी की अगर उनको कहा जाए तो जन्नत की मुहताज नहीं है, लेकिन वो फातिमा की ज़हरा है, रात में जब सजदा करती है तो सजदे में रात गुजर जाती है, अभी एक भी सजदा मुकम्मल नहीं होता है। हज़रत करामी की जब सुबह का सूरज नमोदार होता है, अभी एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता है। हज़रत खातून जन्नत सुबह होकर के बिलक बिलक करके रोती है और बारगाह ही मौला में दुआ करती है कि मौला तूने कितनी छोटी रात बना दी है, मौला तूने कितनी छोटी रात बना दी है कि अभी तेरे रसूल की बेटी एक सजदे में मुकम्मल नहीं है की है कि रात खत्म हो गई है। ए मौला ये एक रात ऐसी बना दे जिसमें तेरे रसूल की बेटी दिल खोल करके 2 सजदे मुकम्मल कर ले। ए लोगों, हजरत उस्मान गनी का ये मकाम है, हजरत अली का ये मकाम है, हजरत फातिमा का ये मकाम है। ए लोगों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के मरकज से बोल रहे हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से पैगाम देना चाहते हैं। हज़रात करामी आपको बताना ये चाहते हैं कि कोई किसी को लिया कोई किसी को छोड़ दिया, कोई किसी को लिया किसी को छोड़ दिया, लेकिन ए लोगों हमारा मकाम जो अहले सुन्नत वल जमात है उनका मकाम क्या है? ए लोगों हमारे पास सब कुछ है। अब हज़रत उस्मान गनी के बाद जब हज़रत मौला अली की खिलाफत मिली, किसने बैठा उस पर? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने नहीं बैठाया। लोगों ने कहा कि अब हज़रत उस्मान गनी के बाद आप खिलाफत की कुर्सी पर फायज हो जाइए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या पैगाम दिया कि नहीं, आप लोगों के कहने से मैं खलीफा नहीं बनूंगा। ये हक है जो लोग जंगे बदर में शामिल हुए थे, जंगे बदर से लोग लौटेंगे, जिसे कहेंगे वो खलीफा बनेगा। अगर हजरत उस्मान गनी के बाद अली बनना चाहते तो बन सकते थे, इसलिए कि रसूल से कराबतदार कोई दूसरा नहीं था। है लोगों, अहले सुन्नत वल जमात क्यों हक पर है इसकी दलील दे करके जाएंगे, इसलिए कि स्टेज रसूल है, बड़ी जिम्मेदारी की जगह है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला जाता है। लोगों, एक एक जुमला जो बोल रहे हैं इसका हवाला मेरे पास मौजूद है, इसे नोट कीजिए। हज़रत करामी हज़रत अमीर मुआविया उस वक्त दावा ठोक दिए कि हम भी हज़रत करामी हम भी खलीफतुल मुस्लिमीन के लायक हैं। अमीर मुआविया कौन है आपको मालूम है? अमीर मुआविया कातिबे वही है, हज़रत अमीर मुआविया कातिबे वही है और हमारे नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में साला लगते हैं, इसलिए कि उनकी एक बहन से निकाह मेरे मुस्तफ़ा का हुआ था। अब अगर कोई इस निस्बत से अमीर मुआविया अपने आप को दावा करते कि नबी से कराबतदार हम हैं, हम ओहदे के लायक हैं, और यहाँ पे हजरत अली ने कहा कि बदर के लोग जिसे कहेंगे, जो बदर में शामिल थे जिसे कहेंगे वो खलीफतुल मुस्लिमीन बनेगा। तो बदर के लोग जब बदर से लौट करके आए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिए। अब इस बात को सुनिए हजरत गरामी, तो हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा कि हजरत अली खिलाफत के लायक नहीं है। कल फिसाद क्यों बचा लगा, कहते कि अली खलीफा बनने के लायक नहीं है। अमीर मुआविया के कुछ लोग थे, कहने लगे कि कैसे लायक नहीं है, ठीक है लायक नहीं तो आप बन जाइए, हम लोग बनाते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि ठीक है आप लोग सपोर्ट करें। हजरत गरामी तो लोगों हजरत अली के चाहने वाले कहते हैं कि अली किस लिए किस वजह से खिलाफत के लायक नहीं,
तो अमीर माविया ने क्या दावा किया कि जो उस्मान गनी के कातिल का बदला नहीं ले सकता है वो खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे हो सकता है। उसका ये दावा था कि अगर हजरत अली खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हैं तो जिसने उस्मान गनी को कत्ल किया उसका बदला ले, उसका किसास ले। हजरत अली ने कहा कि ठीक है बदला लेंगे, लेकिन हजरत उस्मान गनी का जो असल कातिल उसे बुलाया जाए। अभी ये शक की बुनियाद पर किसी को फैसला नहीं किया जा सकता है। हजरत ग्रामी कोर्ट कचहरी में जब जाते हैं तो जब तक असल मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जाता है। लेकिन आज की इस कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उस रब की कोर्ट से जो सारी दुनिया के कोर्ट से ज्यादा बड़ा है उस बड़े कोर्ट से फैसला जो होता है हजरत ग्रामी, तो उस वक्त हजरत अली अल्लाह ताला में इस बात पे बहस हुई और हजरत अली और हजरत अमीर माविया में कुछ बातचीत बंद हो गई, बोलचाल बंद हो गई। ये सहाबा का अकीदत देखिए मुसलमानों, हजरत अमीर माविया भी साहबी रसूल है और कातिबे वही है और हजरत अली भी साहबी रसूल है। अगर हम अली को बुरा कहते हैं तब भी हम गलत है, अमीर माविया को बुरा कहते हैं तब भी हम गलत है। इस बात को हम फैसला करना चाहते हैं तारीख के हवाले से। हजरत ग्रामी तो ये बात हजरत मूसा अशअरी को पता चला। मूसा अशअरी कौन है? ये एक ताबई है। जब उनके कान तक ये आवाज पहुंची कि हजरत अमीर माविया और हजरत अली में बोलचाल बंद हो गई है, तीसरे दिन कहते हैं कि चलो मसालिहत कर दिया जाए। गांव में होता क्या है कि अगर दो पक्ष के लोग लड़ रहे हैं तो दोनों में और लोग पेट्रोल लगा देते हैं, लड़ा देते हैं। तो लड़ाना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। हजरत ग्रामी तो हजरत मूसा अशअरी आते हैं, आने के बाद बिल्कुल टाइम खत्म होते जा रहा है। हजरत ग्रामी अपनी बात को समेट कर आपके हवाले करना चाहता हूँ। वक्त अगर हो तो बहुत सारी बातें इसमें है। हजरत ग्रामी तारीख आई, हजरत मूसा अशअरी आए और हजरत अली को एक तरफ बैठाते हैं, एक तरफ हजरत अमीर माविया को बैठाते हैं और एक तरफ हजरत अमीर माविया खुद बैठते हैं और तीनों के सामने तीन जमात बैठी है। हजरत ग्रामी अली के सामने एक जमात बैठी है, एक अमीर माविया के सामने एक जमात बैठी है, एक जमात मूसा अशअरी के सामने बैठी है। हजरत मूसा अशअरी ने कहा हजरत अली में और हजरत अमीर माविया में जंग हुई है और इत्तेहादी जंग है, आपस में बातें नहीं हो रही है। हजरत ग्रामी तुम खलीफा किसे मानते हो? एक जमात कहती है हम अली को खलीफा मानते हैं, अमीर माविया को नहीं माने। अगर मेरी माविया को पूरा कहते तब भी आप गए, तब भी गुमराह हो गए, और हजरत अली को अगर इनकार करते तब भी आप गुमराह हो गए। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। जिस तरह से आसमान के सितारे रोशनी दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, इसी तरह से मेरे एक एक सहाबा हैं, उनकी रोशनी में हिदायत पाओगे अगर किसी एक भी सहाबी का इक्तदा कर लोगे। हजरत ग्रामी मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा का कितना बड़ा मकाम दिया। अगर वक्त का कोई वली कुतुब अब्दाल भी हो जाए तो उस सहाबे के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। अरे दूर की बात है, हजरत अमीर माविया से एक मसला पूछा गया, कहा गया कि हजरत अमीर माविया ये बताइए कि अली आपसे बेहतर है या आप अली से बेहतर है? तो उस वक्त हजरत अमीर माविया ज़र्फ के जिंदा आदमी थे। वो कहते हैं कि अमीर माविया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस घोड़े पर सवार होते हैं और उस घोड़े के टाप के नीचे जो धूल है उस धूल के बराबर भी अमीर माविया अपने आप को नहीं मानते। अब देखिए सहाबा का मकाम देखिए, हजरत अमीर माविया को जो बुरा कहते हैं वो भी गुमराह है, हजरत अली को जो गुमराह कहते हैं बुरा वो भी गुमराह है। हजरत मूसा अशअरी ने कहा कि एक जमात से पूछ लिए, वो अली को कहे कि अमीर अली को मानते हो, जमात चली गई, उसी जमात का नाम खारजी हुई। फिर का परस्ती कहां से हुई अब आपको बताते हैं। फिर दूसरी जमात से पूछते हैं ये बताओ कि तुम अली को खलीफा मानते हो या अमीर माविया को मानते हो? उस जमात ने कहा कि मैं अमीर माविया को मानता हूं, अली को नहीं मानता। जबकि अली भी सहाबी है, वो भी सहाबी है, दोनों में इनकार करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर जो फैसला किया जाता है वो फैसला बेहतर होता है। हजरत ग्रामी एक जमात अली को इनकार करके चली, उसे खारजी कहते हैं। दूसरी जमात जो चली इनकार करके हजरत अली को, उसे राफजी कहते हैं। कुछ नासिबी हो गए, कुछ राफजी हो गए, कुछ खारजी हो गए। अब वहीं से जमात बढ़ने लगी। आज के सन 2025 में, सन 2024 में, यानी कुछ दिन पहले से लेकर के, यानी 1857 से लेकर के इन बदअकीदों का तादाद बढ़ने लगा, इनकी
में जब हजरत मूसा की जमात में लोग 72 बट गए थे, लेकिन मेरी कौम में 73 फिरके बट जाएंगे, मगर उसमें एक ही जन्नती होगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उस जमात की पहचान क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने क्या कहा कि जो मेरे तरीके पर और जो मेरे सहाबा के तरीके पर वही जन्नती है। ऐ लोगों, अब यहाँ पे बात सुनो गौर से, इसे पता चलेगा कि मसला के आला हजरत के लोग सही पे है या वो लोग सही पे है, इसी प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा। हजरत ग्रामी हजरत मूसा अशअरी ने अब एक जमात से पूछते हैं कि बताओ कि तुम अली को सही मानते हो या अमीर माविया को सही मानते हो? एक जमात कहती है, जमात कहती है कि अली अपनी जगह पे सही है और अमीर माविया अपनी जगह पे सही है, इसलिए कि ये दामाद पैगंबर है और ये नबी के साले है, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के मामू जान है। हजरत ग्रामी हम इन्हें गलत कहेंगे, हम इन्हें गलत कहेंगे, हम उस फैसले को मानते हैं जो फैसला मैदान महशर में होगा, जहाँ पे कायनात के रिफॉर्मर मदीने के ताजदार होके, नई में परवरदिगार होके रब के सामने जो फैसला होगा, कुरान कहता है इन बत्श रब्बिका लशदीद, यानी रब कायनात की पकड़ बहुत सख्त है और उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कुरान के 30वें पारे में पढ़ो तो पता चलेगा, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी मैदान महशर कायम होगा तो सर्रे सर्रे का हिसाब लिया जाएगा और सर्रे सर्रे का जब हिसाब लिया जाएगा वहां पे हजरत अली का भी फैसला होगा और हजरत अमीर माविया का भी फैसला होगा। जो सबसे बेहतर होगा हम उनके साथ हैं। हजरत करामी तो उसी जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर आला हजरत ने अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत करते हुए कितने फिरकों से अपने कलम के मार से मार कर चौंकी करते हुए दिखे। ओ आला हजरत है, कभी तो किसी आशिक ने कलम उठाया तो कहा कि उदास रहे मंजिल जो मेरी शिकस्त पाई, या रसूल अल्लाह मैं तो फट के बैठ जाता, तेरी याद काम आई, मैं हूँ सिर्फ एक मुसाफिर, तू चिराग रहे मंजिल, मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई। हम मसला के आला हजरत वाले हैं, मेरा टाइम खत्म हो चुका। हजरत गरामी हम कहते हैं कि हमारे सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारे पास सब है। हम कहते हैं कि मौला हजरत अबू बकर तेरा इनाम है, हजरत मौला अली तेरा इनाम है, हजरत उमर बिन खत्ताब तेरा इनाम है, हजरत उस्मान गनी तेरा इनाम है, हजरत इमाम हसन तेरा इनाम है, हजरत फातिमा ज़हरा तेरा इनाम है, हजरत इमाम जाफर तेरा इनाम है, हजरत गौस समदानी तेरा इनाम है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तेरा इनाम है। हजरत गरामी कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात है। बड़े फारूक से जवाब देते हैं कि सुनो, ये जितने हैं ये सब हमारे हैं और ये सब के रब के इनाम है। हम रब के हर इनाम को मानते हैं और ये लोग सीधे रास्ते पर है, जिस पर अल्लाह का इनाम है उस रास्ते पर है। हम इनके साथ है, इसलिए इनके साथ है कि ये सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर है। इसीलिए कुरान ने कहा औलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन औलाइका रफीका। अगर सच्चों की जमात तलाश करना चाहते हो तो नबिय्यीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है,
आलेना इल्लल बला, इन तीनों लोगों के मुतालिक जो मैंने गुफ्तगू की और बड़ी तेजी के साथ मैंने गुफ्तगू किया, इसलिए कि वक्त को देखते हुए मैंने जो भी गुफ्तगू किया, अगर मेरे बोलने में कहने में किसी किस्म की कोई गलती, गुस्ताखी, कोई कमी, कोई लफ्ज़ हो गई हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हाजिर और नाजिर समझ करके आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि मौला जो मैंने हक बोला मौला ये तेरे तरफ से, अगर कोई गलत बोल दिया तो सिराजुद्दीन निजामी अपनी तरफ से बोल दिया है, मौला तुझसे माफ अता फरमा, हक बोलने की, हक पे हमें चलने की और नमाज की पाबंदी सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक और तौफीक अता फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हाथ सल्ली अला कहते कहते करबला के जानिसारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमल जज़ा। करीमा कार साजा वली का बादशाह मौला तबारक ताला तू करीम है, तू करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। मौला तबारक ताला सरे शाम से लेकर अभी तक नातखानी हुई, तकरीरें हुई तेरे और तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र और अस्कार हुआ। मौला तेरे रसूल के सहाबियों का जिक्र हुआ, ताबियों का जिक्र हुआ। मौला अगर किसी के कहने में बोलने में किसी किस्म की कोई लफ्ज़ को कोई कमी हो गई हो तो मौला तो अपने हबीब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल में इसे माफ़ अता फरमा। और जो सही पढ़ा गया है मौला सही पढ़ने का सवाब तमाम अंबियाए कराम, शुराए ज़ाम, तबे ताबीन, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अइम्मे मुजतहिदीन, औलियाए कामिलीन, शुहदाए सालिहीन, सलासिले हक़्क़ा के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं मौला, कादिरिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला, सहरवर्दिया सिलसिला, रज़विया सिलसिला, निज़ामिया सिलसिला, जितने भी सलासिल के बुजुर्गान दीन हैं मौला उनकी रूहों को नजर फरमा। और बिलखुसूस हमारे नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर है मौला, इसे कबूल अता फरमा। खास करके मौला इस बस्ती पर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमा।
ان کے بستی پر اپنی برکتوں کا نزول عطا فرما. تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم تمامی مسلمانوں پر خیرات عطا فرما. بالخصوص حضرت امام حسین کا صدقہ ہم تمامی مسلمانوں پر خیرات عطا فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل کش ہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائے شہیدی کربلا کے واسطے. سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رحم علم حق باقر علم ہدا کے واسطے. صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہرے شبلی شیر حق دنیا کے قلبوں سے بچا. ایک کارخ عبد واحد بے رجا کے واسطے. قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر. اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے. میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. ببرکتہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ بیٹھے رہے سیب بھی لے کے جائیے گا. دیجیے نا.